Hello there, welcome to Krishi Jagran. So you guys must have heard a lot of stories about people leaving their high-paying jobs and entering into agriculture. One such story we have with us today here. The man himself, Mr. Ruchit Garg, the founder of HFN. So now without any further ado, let's talk to the man himself, Mr. Ruchit Garg. Hi sir, welcome to the show. Thank you. Yeah. So I would like to ask you, why did you choose this conventional path of agriculture? In spite of having a good job in US, you had been working in Microsoft for around 6 years, if I may say so. Yeah, about 6 years, yes. Yeah. So, I mean, what inspired you, motivated you to choose agriculture as your career path? So I spent a lot of years in, as you said, in Microsoft, not just in India, but their headquarters in Redmond, Washington. And after having built Xbox and operating system, which everybody in the world uses, I got bored and left Microsoft in 2011. And I built a technology company in US, sold it off. And at some point I started having this feeling that, why are we doing the work we are doing? Because I come from a really lower middle class Indian family, wherein, we were growing up in a 100 square feet home. I would bicycle 30 kilometers a day to go to school and college and things like that. So at some point when you have the money, we have a house in Silicon Valley, we have a couple of cars, and that sort of hits you hard that हम कर क्यों रहे हैं, ना इसका कोई औचित्य तो है नहीं, तो we should do something more meaningful with the life. And in 2016 I said let's build something which is more meaningful. My grandfather was a farmer in UP. Growing up, हम अभी भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे किसान अपनी जान ले लेते हैं. All that thing together, we said let's build a company which is more meaningful. So that's how HFN started, to help small farmers across the world. Okay, so on a casual note, so if I had asked my parents, I want to leave a Silicon Valley job and I want to start, agriculture. So my parents would definitely have stopped me. What are you मैंने doing? पूछा नहीं ना इसलिए. So I'm little off track in that sense because बहुत सारे लोग नहीं छोड़ के आते हैं. लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं और शायद वो एक I think at the end of the day it's about what brings peace to your mind and to your heart. And because I have seen lot of upsides of the thing, मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे जो है वापस आना है और मुझे ये करना चाहिए. So yeah, lot of people actually for a long time felt कि अच्छा इसको तो अमेरिका से निकाल दिया होगा. या I remember in India we were working with lot of farmers. तो कभी pineapple आ रहे हैं मणिपुर से. I would actually get pineapples on airplane and fly them from one of the airports, I think Guwahati से आ रहा था, and to Chandigarh, and I will give it in my apartment. So सबको लगता था कि मैं सब्जी वाला हूँ या कुछ है. So but again, it's part of the journey until you hit something. Now people have a different view about what we do. Right. So we have all heard about HFN. So what exactly is HFN doing? So see, the mission we have is to improve the farmers' income. We do it by engaging with them from everything they need, from seed to market. बीज से लेके बाजार तक जो भी एक छोटे किसान को चाहिए होता है, उसमें HFN इन्वॉल्व है. बिकॉज हमें लगता है कि जो किसान है वो पीछे रह गए हैं और वो पुरानी ही तरीक़ों से चीज़ें को उगा रहे हैं, पुराने ही तरीक़ों से उनकी देखभाल कर रहे हैं और पुराने ही तरीक़ों से उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं. But if you see around, like in 10, 15, 20 years, world has changed. World has moved on. Right. From, static phone to mobile phone to WhatsApp to all those different things. So communication change हो गया है. Market कैसे करते हैं वो change हो गया है. अभी हम Blinkit करते हैं. Right? हम बाजार भी नहीं जाते हैं. तो सब कुछ change हो रहा है, but farmer वो वैसा ही है. तो और क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो हर स्टेज में जो है किसान जिस तरह से काम करता है वो चेंज हो गया है. और अनफॉर्चुनेटली जो किसान है वो अभी भी इंट्यूशनली काम करता है, जो दादा परदादा काम करते रहे हैं उसी तरह से ही वो फॉलो करना चाहते हैं. तो उसमें वो पीछे रह गए हैं. तो हमारा जो टैगलाइन भी यही है कि लीव नो फार्मर बिहाइंड. कोई किसान ना पीछे छूटे. तो HFN में लिटरली वी आर रनिंग और गनिंग कि कोई किसान पीछे नहीं छूटना चाहिए. बीज से लेके बाजार तक जहाँ भी हम हेल्प कर सकते हैं वहाँ उनकी हम हेल्प करेंगे. तो कुछ किसान पीछे छूटे भी हैं क्या? बहुत सारे छूटे हैं क्योंकि देश बहुत बड़ा है. 12 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, 120 मिलियन फार्मर्स.
हम काफ़ी बड़ा ग्रुप बना चुके हैं, करीबन 40 लाख से किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Amazing. सबके साथ हम सारे काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई बहुत दूर दूर दराज के किसान भी हैं, मणिपुर में भी है, आसाम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, पुलवामा में भी है, उरी में भी है, बहुत सारी जगह मैं गया भी हूँ, किसानों के साथ रहा भी हूँ। बट अब देश बहुत बड़ा है, बहुत सारा काम करना है, लगेंगे शायद 100 साल, बट या दैट्स व्हाट वी आर अप टू। राइट, तो 100 साल चेंज करने में लगेंगे। हाँ जी। बट अगले 5 साल में व्हाट HFN इज ट्राइंग टू अचीव? See, again, we are trying to become much more efficient because agriculture में जो margins होते हैं business के relatively कम होते हैं अगर आप सिर्फ trading कर रहे हैं तो। और जो brand building exercise है, मतलब एक तो हम है कि ठीक है, हमने आपको बता दिया कि जो गेहूँ लगा रहा है या जो धान लगा रहा है वो आप मूंग भी लगाइए, बट दैट्स नॉट एनफ बिकॉज जो इंक्रीज ऑफ इनकम होता है फार्मर का वो बहुत थोड़ा होता है। सो मोर एंड मोर वी आर गेटिंग टूवर्ड्स कैन वी डू स्मॉल प्रोसेसिंग सेंटर्स विद इन आवर HFN किसान सेंटर, ताकि अगर उसको अगर 1 रुपये जहाँ मिलता था उसको शायद में भी 1.5 रुपये मिलने लगे। तो लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग इन क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट HFN किसानों का अपना ब्रांड, जहाँ पे सरसों का तेल है, गेहूं का आटा है, मैदा, सूजी, दलिया, ये सब जो है वो FPO से हम लेके आ रहे हैं मार्केट में। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं और हमारी कोशिश है कि वो एक गैप हम फिल करें, ताकि जो सप्लाई चेन में जो मनी गांव से बाहर चला जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहे और किसानों की आय जो है दुगनी नहीं तिगुनी चौगुनी हो जाए। ओके, सो अभी अगर हम आय की बात करें जी, तो आपने किसानों की लाइफ में कितना चेंज ला पाए हैं? सो देखो, ऑल ओवर द प्लेस है, हर जगह हम बढ़ा पाए हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, बट कई जगह हैं जहाँ पे हमने 3 गुना भी बढ़ोतरी देखी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बीच के जो मझोलिया लोग हैं जो वैल्यू ऐड नहीं करते हैं वो हम निकाल चुके हैं या निकाल पाए हैं। तो जैसे अवाकाडो है, नीलगिरीज माउंटेन से हमने अवाकाडोज में डील किया, वो किसान को 5 रुपये किलो मिलता है, बैंगलोर में वो 200 रुपये किलो का बिकता है, एंड इट इज़ अबाउट जस्ट 2 आवर 3 आवर ड्राइव। तो देयर वाज अ पॉइंट वेयर इन वी हेल्प दोज फार्मर्स मेक 100 रुपीज़, थिंग्स लाइक दैट, एंड अ मैसिव चेंज। क्या हम स्केल से कर पा रहे हैं? अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक वन ऑफ थिंग्स हैं जो हमें what is helping us कि हाँ वहाँ कुछ स्कोप है, वहाँ कर सकते हैं, बट वो पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं। जी। So intermediaries, if I may ask. Right. So I mean, I think this has been a part of agriculture Right. since centuries, since Right. agriculture started. So do you think it is really possible in this realistic world to completely eliminate the? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम इंटरमीडिएटरीज या बिचौलिए हटा सकते हैं, हम भी एक तरह के बिचौलिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर देखा है कि जो बीच में जो मिडिल मैन हैं वो सप्लाई चेन से ज़्यादा वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू एडिशन कम करते हैं। तो व्हाट आई मीन कि मान लीजिए आपने सेब खरीदा, किसान से आपने 20 रुपये का खरीदा, लेकिन वो तुरंत विदाउट एडिंग एनीथिंग, ना तो आपने उसे पॉलिश की, ना ही आपने स्टिकर लगाया, ना ही आपने उसको अच्छे डिब्बे में लगाया, वो तुरंत जो है 60 रुपये का बेचता है। सो व्हाट हैपेंस देयर इज कि आपने वैल्यू एडिशन कुछ नहीं किया उसमें, बट आपने उसका वैल्यू कैप्चर ज़्यादा किया। तो प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि जब आप वैल्यू ज़्यादा किसी भी सिस्टम से निकालने लग जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो वी आर ट्राइंग टू बी अ बेटर मिडिल मैन इन द प्रोसेस, ताकि हम थोड़ा ही निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम किसानों को दे पाएँ। Okay, so since you mentioned that you have launched some FMCG products also, right? So do you think you are deviating a little bit from your core business? Yes and no, मतलब एक्चुअली उसके सॉल्व करे बिना ना हम किसान की आय हम बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ लार्ज स्केल पे, राइट, अगर मान लीजिए 12 करोड़ फार्मर हैं और उसमें से अगर हम ये कह लेते हैं कि 5 करोड़ या 6 करोड़, ये नंबर गलत हो सकते हैं, गेहूं लगाते हैं। अगर मैं सबको गेहूं से निकाल के कहीं और कर दूं, एक तो बहुत समय लगने वाला है,
लेकिन वो जिस भी चीज़ में ले जाऊंगा तो फिर वो उसकी गेहूं जैसी ही हालत होने वाली है. Getting my point? So if anything, if you have at surplus, Right. the value of that will come down. So how do you solve? You solve it by diversifying the crops where you can, and then also you diversify the way it hits the market. कहीं पे आप आटा बनाएं, कहीं पे वो आप उसका मैदा बना सकते हैं, कहीं पे कुछ और आगे ले जा सकते हैं. तो उस while it is sounds different and of course टीम के लिए ये चैलेंज है कि अब मुझे जो है एक FMCG टाइप की टीम रखनी पड़ेगी. बट उसके बिना ना सॉल्यूशन नहीं है. मतलब वी आर सॉर्ट ऑफ अमूल इन मैनी वेज कि अमूल में अगर आप देखते हैं तो वी नो कि हम मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, आइसक्रीम है, प्रोटीन मिल्क है अब तो बट देन बैकवर्ड में बैक लिंकेज में वो हॉस्पिटल भी है कैटल के लिए, लोन भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो अक्सर हम बात नहीं करते होते हैं. एंड अमूल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. सो इन अ वे वी आर बिल्डिंग दिस ब्रांड एंड इस एज वी सेड ये HFN जो है वो किसानों का ब्रांड है. ये टैगलाइन भी है हमारी जो ब्रांड का है, जहाँ पे हम FPOs को अपना ब्रांड देंगे. हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं कि भैया आपने ये पैकेज ऐसे करना है, लेबल ऐसे करना है, प्राइसिंग ऐसे करनी है, सामान ऐसे बेचना है. इसके बिना और कोई तरीका नहीं है उसको बढ़ाने का. Okay, so since you are an inspiration for many, youth who are watching this episode, so what you would like to tell them? I mean, if they want to become an entrepreneur like you, so are there any hurdles that they had to face, or it's a smooth journey? I mean, what it's नहीं, बहुत मुश्किल है. I think you have to be very passionate, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हो जाता है. एक दो एग्जाम्पल्स भी हैं रातों रात वाले, बट अक्सर नहीं होता है. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 9 years नाउ. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट. ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन. मतलब जब एग्जाम्पल लूँगा, कल मैं किसी यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहा था तो ही वॉज लाइक कि AI में कुछ करना है. तो आई हैव टू हेल्प हिम रियलाइज कि डोंट थिंक अबाउट सोल्यूशन और टूल सेट पर्सपेक्टिव कि AI से करना है. यू हैव टू बी इन लव विद द प्रॉब्लम कि ये सॉल्व करना है. मे बी AI इज अ वे और Web3 इज अ वे, Bitcoin इज अ वे, वी डोंट नो, बिकॉज थिंग्स विल कम एंड गो. यू विल स्टिल बी सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. 2 साल बाद, 3 साल बाद वो टेक्नोलॉजी गायब हो सकती है. सो यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. So that's a very, very important thing. So how did you identify this problem, since you were in IT background? So it was a complete, untouched area for you. So again, passion about solving the small scale farmer problem was my core area. Yeah. But day one, it was not clear how exactly we will do. Initially, my first take was, can we build a Google Maps for agriculture? Okay. Again, pretty big idea. We had a lot of PhD scientists. So on a lighter note, so if I may ask you, any one such agriculture personality or figure whom you would like to have a dinner with? I think Korean. Oh, that's wonderful example. Yeah. So I think that's about it. So it was wonderful having you on our show, sir. Thank you. We look forward to much inspiring stories from you. Thanks. And I hope HFN grows to much bigger heights in future. Thank you. Thanks. Wow, what a story. I hope this story has inspired a lot of you to become entrepreneurs yourselves. And this is what we have been trying to do here at Krishi Jagran. We'll be keep on bringing these successful entrepreneurs to the platform so that you also follow the same path and become entrepreneurs yourselves. Thank you.